Uh, Hello everyone, good afternoon. Welcome back to my channel. So, in our last class, we have discussed. I have given you the brief regarding noun, regarding the eight parts of speech. So today in this class, we'll be discussing about the first topic, that is noun and its kind. So in that class, I have already given you a brief regarding the definition, a small definition of noun. Noun simply means a naming word. Okay, it is used to name a person, place, things, ideas, etc. So in short, if I will be giving you the definition of noun is, it is a naming word. It is used to name a person, place, thing, idea, etc. Okay, idea, feeling, whatever it may be. So so within this noun, we are going to discuss the six important parts of noun, and those important parts are the proper noun. Number one is proper noun, common noun, material noun, collective noun. Number five, concrete and abstract noun, and the last one is countable as well as uncountable noun. So these are the five. So in short, this was the definition of the noun. Now let us move on to the kind, which is very important. The first kind is proper noun. Proper noun. 2. Common noun. 3. Collective noun. 4. Concrete or abstract noun. Number 5. Material noun. Number 6. Countable and uncountable noun. So these are the six kinds of noun which we are going to discuss in today's class. The first is proper noun, common noun, collective noun, material noun, concrete or abstract noun, and the last one is countable as well as uncountable noun. So let us begin from proper noun. Proper noun, as some of you might have the knowledge of proper noun. Proper noun, it is used to name a particular person, place, etc. Person, place, or thing, etc. So what proper noun simply means? It simply means it is used to name a particular person, एक अकेला इंसान. For example, मेरा खुद का एक नाम है जो कि केवा गमलिन है. So वो मेरा proper noun बन गया. For example, place बोलने से क्या है? इटानगर, नाहरलगन. जो इटानगर नाहरलगन है, ये भी एक, this is also a name of a particular place. So Itanagar Naharlagan also is a proper noun. So example एक तो ले लो, Malini Than is a famous religious site which is located at Lower Siang district, Likhavali. If you know about Malini Than, then you might be you might have been there. So this is a place. This is the name of a place, particular place. So we can say that it is a proper noun. So in short, this was the definition of proper noun. Proper noun simply means a name of a particular place, things,
और अ पर्सन। ओके, कुछ भी हो, अगर एक पर्टिकुलर पर्सन, फॉर एग्जांपल नरेंद्र मोदी बोलेगा तो वो भी एक प्रॉपर नाउन है। इंडिया बोलेगा, इफ आई से इंडिया, इंडिया इज ऑल्सो ए प्रॉपर नाउन। इफ आई से अमेरिका, अमेरिका इज ऑल्सो ए प्रॉपर नाउन बिकॉज वो एक कंट्री का नेम है, ठीक है। इफ आई से बैरक ओबामा, बैरक ओबामा भी एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम है, वो भी एक प्रॉपर नाउन है। So this was in short the definition of proper noun. Now let us come to the second one, that is common noun. Common noun. So common noun it describes, it gives names, name of a class, of a person, place or thing. Common noun simply means it is a name of a class, of a person, place or thing. डेफिनेशन थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन एग्जाम्पल के साथ अगर बताएगा तो आप क्लियरिटी आ जाएगी। एग्जाम्पल, बॉय, गर्ल, पेन एक्सेट्रा। बॉय, गर्ल, पेन, country, etc. Okay, so see here, name of a class of a person, एक ही क्लास का, एक ही टाइप का इंसान। फॉर एग्जाम्पल, हम लड़का है तो लड़का लोग को हम लोग जनरली नॉर्मली लड़का लोग के लिए हम लोग एक कॉमन वर्ड यूज करता है बॉय। लड़की लोग के लिए हम लोग कॉमन यूज करता है वर्ड यूज करता है गर्ल। लाइकवाइज हम जो भी चीज से लिखता है उसको हम लोग बोलता है पेन, है कि नहीं। और ये आप देखिए, ये मेरा हाथ में है मार्कर, है कि नहीं, मार्कर। तो मार्कर एक कॉमन नाउन है ना, प्रॉपर नाउन है। आप थोड़ा सोच के देखिए, 2 सेकंड के लिए सोच लिया। तो मार्कर एक कॉमन नाउन है। क्यों बोलने से, बिकॉज मार्कर भी बहुत किस्म का मार्कर आता है, बहुत कंपनी का मार्कर आता है, लेकिन हम बोलेगा कैमलिन व्हाइट बोर्ड मार्कर। अगर हम इसको कैमलिन व्हाइट बोर्ड मार्कर बोलेगा, if I say कैमलिन व्हाइट बोर्ड मार्कर, I have a कैमलिन व्हाइट बोर्ड मार्कर, then this marker, the name of कैमलिन व्हाइट बोर्ड marker is a proper noun. But if I say marker, then it will come under common noun. See here, name of a class of a person, class of a person, जितना भी लड़का है, every boys, जितना भी लड़का है वो लोग के लिए हम लोग एक वर्ड डिनोट करता है, कॉमनली बोलता है। वी यूज a common term that is boy, and for girls also we use girl, pen, etc. So this was in short the definition of common noun. Now let us come to the next one, that is material noun. Material noun. Material noun. Name of a material or substance. Name of a material or substance. Example, gold, silver, wood, cloth, etc. तो मटेरियल नाउन जो क्या है, दो इससे कॉमन नहीं, कॉमन ही है। जैसे कि सिल्वर, वुड, क्लॉथ, जितना भी कपड़ा है उसको हम लोग क्लॉथ ही बोलते हैं। लेकिन इसको हम लोग मटेरियल में क्यों लाया है बोलने से, क्योंकि ये एक सामान है, ठीक है, इट्स ए थिंग, एक सामान है, एक मटेरियल है, इसके लिए हम लोग इसको मटेरियल का अंदर में लाता है। और मटेरियल नाउन क्यों बोलता है, क्योंकि हम लोग ये मटेरियल से हम लोग कुछ सामान बनाता है। गोल्ड से हम लोग चेन बनाता है, रिंग बनाता है, इयरिंग्स बनाता है। सिल्वर से भी हम लोग इस तरह से बनाता है। वुड से हम लोग टेबल बनाता है, चेयर बनाता है। लाइकवाइज क्लॉथ से हम लोग बहुत किस्म का कपड़ा बनाता है। तो इसके लिए जितना भी जो मटेरियल वाला सामान है, फॉर एग्जांपल टेबल, गोल्ड, वुड, क्लॉथ, सिल्वर एक्सेट्रा, जितना भी है ये सब मटेरियल नाउन का अंदर में आता है। दिस कम्स अंडर मटेरियल नाउन। ओके, नाउ द नेक्स्ट is collective noun. Collective noun. This is little bit important. Okay. Name of
name of a group of creatures, places और थिंग्स। एक ग्रुप है, फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या है, कलेक्टिव नाउन में बोला है नेम ऑफ ए ग्रुप ऑफ क्रिएचर्स, प्लेसेस और थिंग्स। सबको नहीं बोल रहा है लेकिन एक ग्रुप, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देखिए, सपोज मेरे पास एक चाबी है, ठीक है। चाबी, बहुत सारा चाबी है मेरे पास में, एक ही साथ में वो चाबी जो सबका साथ एक साथ में अभी लगाया हुआ है, ठीक है। तो उसको हम लोग एक ग्रुप, चाबी का एक ग्रुप हो गया ना। तो हम जितना भी दुनिया में सब चाबी है उसको नहीं बोल रहे, लेकिन जो हम चाबी पकड़ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा, हम इमेजिन करो कि मेरा हाथ में 10 तो चाबी है, अलग अलग ताला का 10 तो चाबी है, लेकिन सबको एक साथ में हम लगा के रखा है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो एक ही किस्म का, एक ही टाइप का, एक ही ग्रुप हो गया ना, लेकिन अलग अलग नहीं है। चाबी तो चाबी है, वो ताला खोलने के लिए यूज करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसके लिए हम लोग एक कलेक्टिव वर्ड यूज करते हैं, ए बंच ऑफ कीज। इसमें हम लोग ए यूज किए, सिंगुलर वर्ड यूज किए, क्यों? क्योंकि हम लोग एक ही बंच, एक ही ग्रुप, चाबी का ग्रुप को हम लोग बोल रहे हैं ना, लेकिन कीज तो प्लूरल में होगा क्योंकि उसमें बंच में बहुत सारा चाबी है, ठीक है। लाइकवाइज ए फ्लीट ऑफ शिप्स भी बोलते हैं हम लोग, ए फ्लीट ऑफ शिप्स। ए फ्लीट ऑफ शिप्स मतलब एक शिप्स, आप लोग को पता है जहाज, ओके। ए फ्लीट ऑफ शिप्स, सपोज इफ यू गो टू ए port or if you go to a shipyard, then you will see that lots of ships are there, okay. So instead of saying I have seen lots of ship at the shipyard, you can say a fleet of ship was standing at the shipyard, was parked at the shipyard, okay. So this is collective word, this is the collective word of ships. Likewise creatures, for animals also we use, not for animals, for example we use the term like police, army, team, pride, herd, etc. These are also collective word. ये कलेक्टिव, पुलिस एक कलेक्टिव वर्ड क्यों है बोलने से, ये पुलिस कॉमन भी होता है, ओके। ये एक कॉमन वर्ड भी है, बट दो देन इट इज ऑल्सो ए कलेक्टिव वर्ड। समटाइम हम लोग बोलते हैं, इन एक सेंटेंस वर्ड में हम एग्जांपल लेगा, अभी इसको थोड़ा एक्सप्लेन करने के बाद हम सेंटेंस एग्जांपल देगा। उसमें क्या है, उसमें हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे क्यों हम लोग पुलिस को एक कलेक्टिव नाउन का अंदर में लाता है, दो इट इज ए कॉमन नाउन, ओके। हम लोग कभी कभी बोलते हैं ए प्राइड ऑफ लायन, ए प्राइड ऑफ लायंस वर रोमिंग इन द पार्क और वर रोमिंग इन द जू, ए हर्ड ऑफ कैटल, ए हर्ड ऑफ कैटल्स, ए टीम ऑफ प्लेयर्स, an army of soldiers, right? तो सब एक ही टाइप का, एक ही ग्रुप का है। सोल्जर्स बोलने से सब एक ही सोल्जर है, लेकिन दुनिया का सब जितना आर्मी है उसको नहीं बोल रहा है, सिर्फ हम जो देखा है, ठीक है। लाइकवाइज हर्ड ऑफ कैटल्स, हम जितना कैटल्स, ए हर्ड उसमें 10-12 तो भी हो सकता है, ठीक है, 5-6 तो भी हो सकता है, मोर देन 2 जितना भी हो, तो हम लोग उसके लिए ग्रुप के लिए एक कलेक्टिव वर्ड यूज करता है, तो उसी को हम लोग कलेक्टिव नाउन बोलता है। तो let us see some examples or sentence example of collective noun, okay. People are, crowd is। people क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है और ये हेल्पिंग वर्ड आर प्लूरल्स के लिए यूज करता है जनरली। हम लोग पीपल के साथ में एक सेंटेंस बनाएगा, उसमें देखो 2 सेंटेंस बनेगा, उसमें डिफरेंस देखो। पीपल आर gathered in at the hall, okay. People are gathered in that hall, okay. Now sentence number 2, peoples of India and Pakistan
are gathered in that hall. See here, what is the difference in these two sentences? The difference is that in the first sentence, I have written people without using s, but I have used the helping verb are, which usually used to denote plurals, right? So here also we are mentioning about lots of people that are gathered in that hall. Okay, but in case of sentence number 2, I have used s along with people. I have written peoples of India and Pakistan. When I mention two different countries, at that time we have to use s, peoples. Okay. When I mention two different states also, at that time we have to use s, peoples. Okay. This is the sentence difference. This is the rules behind using people and peoples. Okay. So the next sentence example is crowd. In with this crowd also, crowd is normally we use is, ज़्यादातर हम लोग easy यूज करते हैं, ज़्यादातर नहीं, हम लोग crowd का साथ हमेशा easy यूज करना पड़ेगा. The crowd is shouting my name. The crowd is shouting my name. See here. Sentence 1, sentence 2. They are supporting me and they aren't. This is the short form, they are not. Okay, they are not. Both the crowds are here. See, in these two sentences, you might have seen the difference. In the first sentence, I have used is instead of are. Okay. The crowd is shouting my name. एक जितना ज़्यादा आदमी गैदर होके बैठा हुआ है, उसके लिए हम क्यों is यूज़ किए? क्योंकि एक ही ग्रुप में, एक ही टाइम, एक ही समय, एक ही ग्रुप का बारे हम बोल रहे हैं ना, क्राउड, एक ही क्राउड का बारे बोल रहे हैं, इसके लिए हम यहाँ में is यूज़ किए हैं. इन द सेकेंड सेंटेंस हम क्राउड्स लिख दिया एंड हम आर लिख दिया, क्योंकि सेंटेंस ही कुछ इस तरह है. दे आर सपोर्टिंग मी, ये एक क्राउड का बारे हो गया, उसमें दो क्राउड है, एक क्राउड उसको सपोर्ट कर रहा है और दूसरा क्राउड सपोर्ट नहीं कर रहा है. ठीक है, एक क्राउड सपोर्ट कर रहा है, दूसरा क्राउड सपोर्ट नहीं कर रहा है. बोथ द क्राउड्स आर हियर, दोनों ही क्राउड्स यहाँ में है. तो इसके लिए जब दोनों बोल दिया, इफ आई हैव रिटन बोथ, एट दैट टाइम आई हैव टू यूज इंस्टेड ऑफ क्राउड क्राउड्स, प्लूरल एस डालना पड़ेगा. ठीक है, और अगर हम एस डाल दिया तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब आर ही आएगा. दिस इज द डिफरेंस. ओके, now let us come to one more sentence example. पुलिस का साथ में हम लोग इज आर हम लोग यूज करता है. कब यूज करता है उसको देखो. द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग, द पुलिस इज investigating the case. और दूसरा सेंटेंस एग्जांपल है, द पुलिस आर पेट्रोलिंग इन माय एरिया. सी, आई हैव गिवन टू सेंटेंस एग्जांपल. द पुलिस इज, या में हम इज यूज किए या में हम आर यूज किए. अब सोच रहा होगा तो ये सेंटेंस कैसा, पुलिस लिखा है लेकिन इज आर दोनों में, एक में इज और एक में आर, सिमिलर सेंटेंस लग रहा है, लेकिन इज ने यूज करके आर क्यों यूज किया है सेकंड में. सो सी हियर, द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द केस. तो हियर पुलिस इज डिनोटिंग डिपार्टमेंट. ठीक है,
एक डिपार्टमेंट को डिनोट कर रहा है, एक सिंगल डिपार्टमेंट को डिनोट कर रहा है कलेक्टिवली पुलिस जो। तो इसके लिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब इज को यूज किए हैं, ठीक है। लाइकवाइज हियर इन दिस सेकंड सेंटेंस पुलिस जो ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स, ठीक है, पुलिस ऑफिसर्स भी है प्लस कांस्टेबल भी है, वो लोग घूम रहे हैं, ठीक है, पेट्रोलिंग कर रहे हैं। इसके लिए हम यहाँ में आर यूज किए, ठीक है, सबके लिए, पुलिस ऑफिसर्स एज वेल एज कांस्टेबल जो है वहाँ में घूम रहे हैं, जो पेट्रोलिंग कर रहे हैं, सबके लिए हम ये वर्ड पुलिस को कलेक्टिवली यूज किए। इसके लिए हम हमें हेल्पिंग वर्ब आर दिया है। लेकिन फर्स्ट सेंटेंस में हम सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट को स्पेसिफिकली बोला है, इसके लिए इज यूज किया है। सो दिस इज द डिफरेंस, ओके। दैट वाज इन शॉर्ट अबाउट कलेक्टिव नाउन। नाउ द नेक्स्ट kind of noun is concrete and abstract noun. Concrete and abstract noun. See this, the first part, that is noun, it is not that important, but you just need to have a clear concept. What is proper noun, what is common noun, what is material noun, what is collective noun, what is concrete and abstract noun, what is countable as well as uncountable noun. But in our coming classes we'll be going into the depth of verbs, the tenses, and usually that part is the most important one, because if you know the proper rules of framing a sentence, then only you'll be able to speak good English as well as you'll be able to learn you write good English, okay, write a proper sentence, not a good English. So let us come to the next kind, that is concrete and abstract noun. Concrete noun simply means जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, एग्जिस्टेंस होता है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। फिजिकल एग्जिस्टेंस मतलब क्या है? हम हैं, चलो हम हैं ना ये दुनिया में, आप देख रहे हैं हम हैं, है कि नहीं? एक इंसान है जिसका नाम केवागमनेन है, वो है यहाँ में दुनिया में, है कि नहीं? उसका मतलब एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है। लेकिन जब हम दुख हो रहा है, ठीक है, जब हम दुखी होके बैठा हुआ है, कोई उसको देख सकता है, महसूस कर सकता है, सुन सकता है? नहीं सुन सकता ना, तो उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। तो वो सब वर्ड जो, वो सब नाउन जो कहाँ में आता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन का अंदर में आता है। सो लेट अस सी सम एग्जांपल। फिजिकल नाउन, फॉर एग्जांपल राम, दिल्ली, दिल्ली, केक, मैथ्स, टीयर्स, वॉइस। लाइकवाइज इसका एग्जांपल देखो, ट्रूथ, ग्रीफ, childhood, honesty, and even some events also, birthday. See here in this, here I have written two different words. First one is concrete and the second one is abstract noun. और हम लोग को पता चल रहा है कि concrete simply means जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है दुनिया में, जिसको हम लोग देख सकता है, जिसको हम लोग टच कर सकता है, जिसको हम लोग महसूस कर सकते हैं, जिसको हम लोग सुन सकते हैं, ठीक है नहीं? और दूसरा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको हम लोग नहीं देख सकता है, नहीं सुन सकता है, टच नहीं कर सकता है, ना ही सुन सकता है। ओके, सो एग्जाम्पल, राम एक इंसान है, इंसान को तो हम लोग पूरा देख सकता है, सुन भी सकता है उसका बात को। दिल्ली, ईटानगर, नाहरलगुन, जो भी बोलो, ये एक प्लेस का नाम है, तो हम लोग इसको प्लेस को देख सकता है, हम लोग विजिट भी कर सकता है। केक खाता है, खा भी सकता है हम लोग, है कि नहीं? देख भी सकता है, सुन भी सकता है, स्मेल भी कर सकता है। लाइकवाइज मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है। पेन भी देखो, पेन को भी हम लोग देख सकते हैं। टीयर्स, आदमी जब रोता है उसका आँख से आंसू निकलता है ना, आंसू टपकता है, वो आंसू को तो हम लोग देख सकते हैं। लाइकवाइज वॉइस, तो वॉइस को हम लोग देख नहीं सकते, लेकिन हम लोग आवाज को तो सुन सकते हैं ना, आवाज को सुन सकता है, उसका मतलब उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है। लेकिन ट्रूथ,
सच्चाई को हम लोग नहीं देख सकते हैं, ना ही सुन सकते हैं, ना ही हम लोग सच्चाई को बोल सकते, ना ही हम लोग सच्चाई को देख सकते हैं, है कि नहीं? तो और ना ही सच्चाई का फिजिकल एग्जिस्टेंस है। सच्चाई एक इंसान नहीं है, ठीक है? जस्ट हम लोग उसको महसूस कर सकते हैं, हाँ ये सच है, ठीक है? लाइकवाइज ग्रीफ, दुख होना, चाइल्डहुड, अपना बचपन, हम अपना बचपन को अभी देख सकते हैं? नहीं देख सकते ना। हम जस्ट इमेजिन कर सकते हैं, मेरा बचपन में ऐसा था, है कि नहीं? मेरा बचपन ऐसा हुआ करता था, मेरा बचपन। हाँ, वो वीडियो रिकॉर्डिंग का बात अलग होता है, वो तो एक रिकॉर्डेड चीज़ है ना, लेकिन हम अपना बचपन को कभी नहीं देख सकते हैं। लाइकवाइज ऑनेस्टी, एक ऑनेस्ट आदमी है, तो फॉर एग्जांपल हम एक बहुत ही ऑनेस्ट आदमी है, ठीक है? लेकिन मेरा ऑनेस्टी को कोई भी अंदर से नहीं देख सकता है। मेरा अंदर में क्या है कोई भी नहीं देख सकता ना, है कि नहीं? कोई भी नहीं सुन सकता है। तो इसके लिए ऑनेस्टी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लाइकवाइज बर्थडे, हम लोग संडे, मंडे, ट्यूसडे उसको हम लोग नहीं देख सकते हैं ना। जस्ट हम लोग जानता है ये संडे है, ये मंडे है, आज फ्राइडे है, लेकिन हम लोग नहीं देख सकते हैं, है कि नहीं? लाइकवाइज हम लोग बर्थडे को भी हम लोग नहीं देख सकते। बस हम लोग बर्थडे में मना सकता है, पार्टी वार्टी कर सकता है, लेकिन बर्थडे डे को हम लोग नहीं दे सकते ना। इसके लिए जो डे और इवेंट होता है वो भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। So this was in short the simple difference between concrete and abstract noun. Now let us come to the last part, the last kind of noun, that is countable as well as uncountable. Countable, number 6, countable and uncountable. Uncountable. Simply just imagine what is countable. Countable simply means is the thing which we can count, right? Uncountable simply means which we cannot count, जिसको हम लोग गिनती नहीं कर सकते हैं। Countable क्या है? जिसको हम लोग गिनती कर सकते हैं, which we can count. Uncountable simply means which we cannot count. So let us see some example. An example अगर देखेगा तो उसका sentence भी किस तरह से बनाता है उसको हम सिखा देगा। For example, और generally with countable we use how many, ठीक है? How many, जब भी कुछ हम लोग पूछता है, ठीक है, कुछ भी हम लोग एक क्वेश्चन किसी को भी पूछता है काउंटेबल चीज़ को लेके, तो हम लोग हाउ मेनी बोलते हैं। और अनकाउंटेबल को हम लोग जब भी पूछता है तो हम लोग हाउ मच से शुरू करते हैं, ठीक है? एग्जाम्पल देखो, क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल वाटर, फर्स्ट एग्जाम्पल वाटर। तो अब सोच के देखो, वाटर को हम लोग हाउ मच बोलेगा ना, हाउ मेनी बोलेगा? Just imagine, think for a second. Water, the first example is water. Just imagine, in case of water, whether we are going to use this one, how much or how many? सोच लिया? सही सोचा। फर्स्ट हम लोग वाटर का साथ हमेशा हाउ मच यूज करें, क्योंकि हम लोग वाटर को हम लोग देखा है कि वाटर एक अनकाउंटेबल नाउन है, जिसको हम लोग गिनती नहीं कर सकते हैं, ठीक है? हम लोग गिनती नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग लीटर, 1 लीटर, 2 लीटर्स, 3 लीटर्स ऑफ वाटर हम लोग जब लिखता है तब हम लोग हाउ मेनी यूज करना पड़ेगा, क्योंकि लीटर जो है ये एक काउंटेबल नाउन है। लीटर जो है एक काउंटेबल नाउन है, तो इसके लिए हम लोग हाउ मेनी हम लोग यूज करना पड़ेगा। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर आर देयर इन द टैंक, ठीक है? टैंक में कितना लीटर्स वाटर है। और हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क डू यू हैव, हमारा पास कितना मिल्क का लीटर है, ठीक है? लेकिन लीटर यूज नहीं करेगा तो हम लोग हाउ मच मिल्क डू यू हैव, आपके पास कितना दूध है, ठीक है? हाउ मच वाटर डू यू हैव, आपके पास कितना पानी है, ठीक है? तो उसमें हम लोग मच यूज करेगा जब हम लोग वाटर को सिर्फ यूज करें, लेकिन हम जब लीटर को यूज करेगा तब हम लोग मेनी को यूज करना पड़ेगा, क्योंकि लीटर एक काउंटेबल नाउन है, ठीक है? नाउ लेट अस कम टू द सेकंड एग्जांपल। राइस, चावल। तो आप सोचो, चावल एक काउंटेबल नाउन है ना, अनकाउंटेबल नाउन है? सोचिए, हाँ, राइस
एक अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। क्योंकि हम लोग चावल को हम लोग पूरा गिनती नहीं कर सकते हैं ना, एक बस्ता में कितना चावल हम लोग गिनती कर सकता है, एक एक करके नहीं कर सकता है। तो हम लोग चावल में भी हाउ मच यूज करेगा हमेशा, हाउ मच, ठीक है। लेकिन जब ये चावल को हम लोग 1 kg 2 kgs इसमें हम लोग बोलेगा तो हम लोग हाउ मेनी यूज करना पड़ेगा, हाउ मेनी, क्योंकि केजी जो है ये एक काउंटेबल नाउन है, केजी काउंटेबल नाउन है, लेकिन राइस अनकाउंटेबल नाउन है। इसके लिए हम लोग राइस में हम लोग हाउ मच यूज करता है, लेकिन जब भी हम बोलेगा हाउ मेनी केजीज ऑफ राइस डू यू हैव, आपका पास कितना केजी चावल है, एट दैट टाइम केजी यूज किया तो मेनी यूज करना पड़ेगा। लेकिन केजी यूज नहीं करेगा तो हाउ मच राइस डू यू हैव, आपका पास कितना चावल है, ठीक है। उस समय हम लोग मच यूज करेंगे, क्योंकि राइस एक अनकाउंटेबल नाउन है, केजी काउंटेबल नाउन है, ठीक है। उसी तरह शुगर, चीनी भी आप सोचो, चीनी काउंटेबल नाउन है ना, अनकाउंटेबल नाउन है, यस, चीनी भी अनकाउंटेबल नाउन है। तो चीनी के साथ में भी हम लोग हाउ मच यूज करना पड़ेगा। लेकिन चीनी का ग्रेन्स होता है ना, छोटा छोटा उसका बॉक्स टाइप में छोटा छोटा ग्रेन्स होता है, तो उसमें हम बोल सकते हैं आई हैव 4 ग्रेन्स ऑफ शुगर, आई हैव 4 हाउ मेनी grains of sugar do you have। इसमें हम हाउ मेनी यूज किए हैं शुगर का साथ में, लेकिन उससे पहले हम ग्रेन्स यूज किए हैं, और ग्रेन जबकि हम लोग को पता है काउंटेबल नाउन है, ग्रेन को हम लोग काउंट कर सकता है कि नहीं। तो इसके लिए शुगर एक अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन ग्रेन काउंटेबल नाउन है। तो जो भी चीज जिसको हम लोग गिनती कर सकते हैं उसका आगे में हम लोग क्वेश्चन पूछने से हाउ मेनी ही यूज करता है, और जो भी चीज अनकाउंटेबल नाउन है उसका आगे में हम लोग हमेशा हाउ मच यूज करते हैं। जैसे कि पैसा, पैसा को आप गिनती कर सकते हैं, पैसा का गिनती है, पैसा आप जैसे कि हमको पैसा चाहिए, गिव मी सम मनी, और आपका जैसे कि आपको हम बोल रहे हैं आपका पास कितना पैसा है, तो आप हम बोलेगा हाउ मेनी मनी डू यू हैव, कभी नहीं। मनी में भी हम कभी हाउ मेनी यूज नहीं करेगा, हाउ मच मनी डू यू हैव, ठीक है, हाउ मच मनी डू यू हैव, मनी को लेके, मनी में हम कभी मेनी यूज नहीं करेगा, ठीक है। हाउ मेनी मनी डू यू हैव नहीं बोलेगा, क्योंकि मनी खुद एक अनकाउंटेबल नाउन है। लेकिन जब कॉइन्स का बात आएगा, कॉइन्स सिक्का, तो हम बोलेगा हाउ मेनी कॉइन्स डू यू हैव, आपके पास कितना सिक्का है, उस समय हम मेनी यूज कर सकते हैं कॉइन्स का साथ में, क्योंकि कॉइन्स काउंटेबल है, कॉइन्स को हम लोग गिन सकते हैं, लेकिन पैसा को हम लोग नहीं गिन सकते हैं। लेकिन पैसा का नोट्स, जो नोट्स है ना 10 रुपया 20 रुपया, जैसे कि मेरा पास एक 20 रुपया का नोट है, तो शायद मेरा पास और भी होता होगा 5-6, तो आप हमको पूछेगा हाउ मेनी नोट्स और हाउ मेनी 20 रुपीज नोट्स डू यू हैव, आपका पास कितना 20 रुपीज नोट है, तो नोट्स बोल दिया ना, तो नोट्स बोल दिया, तो नोट्स क्या है, काउंटेबल नाउन है, तो इसके लिए हम हाउ मेनी यूज करेगा। लेकिन पैसा के लिए, मनी के लिए हाउ मच मनी डू यू हैव, हाउ मेनी मनी डू यू हैव नहीं बोलेगा, ठीक है, हाउ मच, क्योंकि मनी खुद एक अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। सो दिस वाज इन शॉर्ट, और इसी तरह आज का क्लास खत्म होता है। हम जितना सकता है इसको शॉर्ट में बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये जस्ट इसका कॉन्सेप्ट आपको जानना जरूरी है, कॉन्सेप्ट नहीं, ये क्या चीज़ है इसका डेफिनेशन आपको थोड़ा जानना जरूरी है, प्लस कुछ कुछ एग्जाम्पल्स है उसको जानना जरूरी है। सो दिस वाज इन शॉर्ट अबाउट टुडेज class, that is noun in its kind. So on our next class we'll be going towards the second part, that is pronoun, which is also very important. So within that pronoun we will be discussing the kinds, the forms of pronouns, as well as I'll be giving you some exercise also. Okay, so that's all for today. Thank you, keep supporting, and
and if possible please to subscribe my channel as well as do share with your friends and family. Thank you.